آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ہوں سیما نازنین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں پر۔ پبلک سروس رائٹ ایکٹ 2015 پر عمل آوری کا متعلقہ کمیشن کے کمشنر ڈاکٹر کرن جادھو نے لیا جائزہ۔ سرکاری افسران کو مذکورہ قانون پر سختی سے عمل کرتے ہوئے شہریان کو بہتر خدمات فراہم کرنے کی دی ہدایت۔ عام خاص سے متصل ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر گارڈن میں قائم کردہ ڈیجیٹل ڈوم تھیٹر میں دکھایا گیا پہلا پریمیئر شو۔ جغرافیائی ماحول کے مطابق یہاں شروع کیے گئے ہیں زپ لائن، پنجی انجیکٹر اور سکائی سائیکلنگ جیسے ایڈونچرز۔ خواتین اور دوشیزاؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے بڑھتے واقعات پر قابو پانے پولیس انتظامیہ اور AMC عملے نے شروع کی مشترکہ مہم۔ تعلیمی اداروں کے اطراف 100 میٹر کے دائرے میں موجود پان اور چائے کی ٹپریوں کا کیا گیا صفایا۔ آج چلے ادھو راؤ چوک سے ہڑکو کارنر کے درمیان بلڈوزر۔ اور دن دہاڑے عثمان پورہ علاقے کی ناکسین کالونی میں چاقو گھونپ کر ایک شخص کا کر دیا گیا قتل۔ مہلوک کے رشتہ داروں نے لگایا شراب کے غیر قانونی کاروبار کے سبب واردات پیش آنے کا الزام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پبلک سروس رائٹس ایکٹ 2015 پر سختی سے عمل کرتے ہوئے انتظامیہ عوام کو بہتر خدمات فراہم کرے، یہ ہدایت پبلک سروس رائٹس کمیشن کے کمشنر ڈاکٹر کرن جادھو نے سرکاری افسران کو دی۔ پبلک سروس رائٹس ایکٹ پر عمل آوری کا جائزہ لینے کے لیے سرکاری افسران کی ایک اہم میٹنگ مذکورہ کمیشن کے کمشنر ڈاکٹر کرن جادھو نے ضلع کلکٹر آفس کے میٹنگ ہال میں طلب کی، جس میں ضلع کلکٹر دلیپ سوامی، ضلع پریشد کے CEO وکاس مینا، میونسپل کارپوریشن کے ایڈیشنل کمشنر رنجیت پاٹل، DCP رورل سنیل لانجیوار اور RDC ونود کھروڑکر سمیت سبھی ڈپٹی ڈویژنل آفیسرز، تحصیلدار اور مختلف شعبوں کے HOD شریک تھے۔ مختلف شعبوں کی خدمات کا جائزہ لینے کے بعد پبلک سروس کمیشن کے کمشنر ڈاکٹر کرن جادھو نے کہا کہ مذکورہ قانون پر سختی سے عمل کرتے ہوئے عوام کے سبھی کام وقت پر مکمل کیے جائیں اور اس میں ٹرانسپیرنسی رکھی جائے۔ اسی طرح جو کام آن لائن کرنے سے متعلق ہدایت دی گئی ہے، ان کاموں کے لیے شہریان کو آن لائن سہولیات فراہم کروائی جائیں۔ اتوار کی چھٹی کے بعد دوسرے دن بھی بنوٹی تعلقہ سوئیگاؤں کے پرائمری ہیلتھ سینٹر پر تالا پڑا رہا، جس کے سبب اطراف کے علاقوں کے مریضوں کو دقتوں کا سامنا ہوا۔ گاؤں والوں نے اعلیٰ افسران سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ عیار ہے کہ بنوٹی کے اس اسپتال سے تعلقہ سوئے گاؤں کے اس علاقے کے کم و بیش 42 گاؤں کے ضرورت مند مریضوں کی طبی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ تاہم پیر کے روز جب مریض اسپتال آئے تو دیکھا کہ یہاں تو سیدھے قفل ہی لگا ہوا ہے۔ ہفتے کے پہلے ہی دن اسپتال بند ہونے کے سبب مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوا اور دور دراز دیہاتوں سے آئے ضرورت مند مریضوں کو سہ پہر 4 بجے تک انتظار کرنے کے بعد خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ واضح ہو کہ اس اسپتال میں دو میڈیکل آفیسرز ہیں، تاہم دونوں ہی غیر حاضر تھے اور ساتھ ہی تمام دیگر ملازمین بھی ندارت تھے۔ اس لاپرواہی اور اسپتال کو غیر معلنہ بند رکھنے پر گاؤں والوں اور مریضوں نے اعلیٰ حکام سے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ عام خاص میدان سے متصل قائم کیے گئے بابا صاحب امبیڈکر تارانگن گارڈن میں پہلا تارانگن پریمیم شو دکھایا گیا۔ واضح رہے کہ عام خاص میدان سے متصل ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر گارڈن کے نام سے آج سے 3 دہائیوں قبل میونسپل انتظامیہ نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک خوبصورت تفریح گاہ بنائی تھی، مگر یہ تفریح گاہ کھنڈر میں تبدیل ہو کر رہ گئی تھی، جہاں لگائے گئے مختلف اقسام کے درخت پودے اجڑ گئے تھے۔ یہاں بنائے گئے گنبد کے عین درمیان میں بنایا گیا چبوترا بھی ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ یہاں کی الیکٹرک وائرنگ بھی نامعلوم چوروں نے غائب کر دی تھی اور گارڈن پر شہر کے اوباش قسم کے افراد نے قبضہ جما لیا تھا۔ رات کے اوقات یہاں رنگین محفلیں سجنے لگی تھیں۔ چرس، گانجا اور شراب کے عادی لوگ یہاں بیٹھ کر عیاشیاں کرنے لگے تھے۔ اس تعلق سے ہم نے کئی مرتبہ MCN پر خبر دکھائی، جس کا اثر ہوا ہے اور گارڈن سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر وجے پاٹل نے میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کی رہنمائی میں اس کھنڈر پڑی عمارت اور گارڈن کی کایا پلٹ کر دی ہے اور یہاں تارانگن کے نام سے ایک خوبصورت ڈیجیٹل ڈوم تھیٹر پلانیٹوریم بنایا گیا ہے، جہاں فلکیاتی تحقیقات پر مبنی فلم دکھائی جائیں گی۔
ये मराठवाड़ा का पहला डिजिटल डोम थिएटर है। इसके अलावा इस उजड़े गार्डन पर मेहनत करके फिर से उसे यहाँ पर हरा भरा कर दिया गया है। आज इस तारांगण गार्डन में पहला तारांगण प्रीमियर शो रखा गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अम्बेडकरी तंजीमों के कायदीन के अलावा म्यूनसिपल स्कूल्स के सदर मुदर्रिसीन को भी मदऊ किया गया था। इस मौके पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने हाज़रीन को सबसे पहले इस गार्डन की खस्ताहाली से वाकिफ करवाया और उसकी काया पलट किए जाने के बाद मौजूदा इमारत और तारांगण की खुसूसियात से मुतालिक उन्हें मालूमात फराहम की। इसके बाद उन्हें फलकियाती तहकीक पर बनाई गई एक फिल्म भी दिखाई गई। इस मौके पर म्यूनसिपल सिटी इंजीनियर ए.बी. देशमुख, गार्डन सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय पाटिल, डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांडरे, साबिक मेयर प्रकाश निकालजे, साबिक कारपोरेटर गौतम खरात, पुरुषोत्तम ठाकुर, कृष्णा बनकर, एजुकेशन कोऑर्डिनेटर गणेश दांडगे, म्यूनसिपल स्कूल्स के तमाम हेडमास्टर्स और दीगर मौजूद थे। पहिला आंबेडकर जयंती झाला बघितलं, भरपूर असे अनुयायी येतात, फक्त जिल्ह्यातूनच नव्हे पूर्ण मराठवाड्यातून विविध भागातून येतात आणि बाबासाहेबांना मालार्पण केल्यानंतर काहीतरी बाबासाहेबांच्या आचार विचाराची बघितलं पाहिजे, त्यांना ज्ञानोदय व्हायला पाहिजे। अनुषंगाने या शहरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तिथे येऊन गेले, कॉलेज स्थापना केल्या, त्यांच्या नावाने युनिव्हर्सिटी आहे आणि त्या व्यक्तीचं किती काम मोठं आहे। बरेच लोकांना समाज गैरसमज खूप आहे, त्यांचं कार्य, त्यांचं कर्तव्य, त्यांचं केलेलं शिक्षण, त्यांना मिळालेला पुरस्कार या सर्व लोकांना कळलं पाहिजे। आणि म्हणून जर बघितलं या ठिकाणी आम्हाला 3 ट्रॅक्टरवर विविध दारूच्या बाटल्या आणि विविध कचरा, विशेष करून नशेचे निगडीत ते काढावं लागतं। हे जर खरं तर ज्यांच्या नावांनी आपण इथं करायचं स्वप्न बघितलं तर हा डॉक्टर बाबासाहेबांना जर कळाला असता ते रडलं असतं। हे माझे अनुयायी किंवा माझा हा समाज अशा पद्धतीचं नव्हे। मी शिकलो, मी मोठं झालो आणि सर्वांनी शिकलं पाहिजे, शिकलं तरच मोठे व्हाल। ह्या जे विचार आहेत त्या विचाराचा प्रचार आणि त्याचं चांगलं प्रसिद्धी होण्याकरिता आपण मी ज्यावेळेला इकडे आलो हे बघितलं। आता आम्ही विपश्यनासुद्धा करतो। आता विपश्यना कोण करतात? आता बरेच मी बघितलं विपश्यना तरी सर्व। महाराष्ट्र की सनतों को गुजरात मुंतकिल करने के खिलाफ राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर मजम्मती हड़ताल की गई। आया रहे कि बड़ी बड़ी सनती कंपनियां वेदांता फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क और टाटा एयरबस समेत मिनजुमला 22 प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से रियासत गुजरात और दीगर रियासतों को मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिसकी मुखालफत और मजम्मत करते हुए राष्ट्रवादी शरद पवार ग्रुप की यूथ कांग्रेस की जानिब से यह एहतजाज किया गया और जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है। मेमोरेंडम में इल्जाम लगाया गया कि मुसलसल महाराष्ट्र से सनतों को गुजरात भिजवाए जाने के सबब यहाँ मराठी नौजवानों के हाथों से रोजगार दूर होता जा रहा है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रियासती हुकूमत की इस पॉलिसी व रवैये के खिलाफ यूथ कांग्रेस के रियासती सदर महबूब शेख की क़ियादत में यह रियासतगीर एहतजाज किया गया है और इसी के हिस्से के बतौर औरंगाबाद में भी एनसीपी युवक के कारकुनान ने जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया। इस एहतजाज में पार्टी के कारकुनान, ओहदेदार और नौजवान शहरियान बड़ी तादाद में शामिल थे। सरकार हे आहे हे फक्त काय करते, स्वतःची चमडी वाचवण्याचा प्रयत्न करते, युवकांचे रोजगार चाललेले असताना देखील, आणि फक्त मोठ्या मोठ्या घोषणा करायच्या। आता काल परवाच आपण पेपरात बातमी वाचली की ज्यावेळेस हे बाहेर देशात गेले होते तिथले यांचे म्हणजे केटरिंगचे सुद्धा बिलं अजून बाकी आहेत, जे फक्त मौज मजा करायला जातात, लोकांना फसवण्याचा कार्यक्रम करताय, सांगताय की तुमच्यासाठी रोजगार आणायला गेलो, पण तसं काहीच नाही आहे। त्यामुळे आज आम्ही जे आंदोलन केलेलं आहे आमचा एकच इथं मोठा आहे की महाराष्ट्रातले उद्योग महाराष्ट्रातच राहू द्या, एक काम करा, तुम्ही सगळे गुजरातला चालले। त्यासाठी हे प्रामुख्याने आंदोलन होतं आणि येणाऱ्या विधानसभेच्या इलेक्शनमध्ये हा युवक असेल, शेतकरी असेल, महाराष्ट्रातले सर्व घटक असतील यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। खवातीन और तालिबात के साथ होने वाले वाक़यात पर काबू पाने की गर्ज से तालीमी इदारों के अतराफ 100 मीटर के दायरे में मौजूद पान और चाय की टपरियां हटाने का फैसला म्यूनसिपल कमिश्नर ने किया, जिसके मुताबिक आज पुलिस इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने
मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए उद्धवराव चौक से हड़को कॉर्नर तक तालीमी इदारों के अतराफ मौजूद टपरियां हटा दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों रियासत महाराष्ट्र के बदलापुर में पेश आए वाक़े के बाद अवाम में गुस्सा फूट पड़ा था, जिसके बाद हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से हर वो ठोस कदम उठाए जाने लगे हैं जिसके सबब ख़वातीन, दोशीज़ाओं और बिलखुसूस तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाया जा सके। अक्सर ये देखा गया कि तालीमी इदारों के अतराफ मौजूद वहाँ पान और चाय की टपरियों पर बैठकर औबाश किस्म के नौजवान रास्ते से गुजरने वाली ख़वातीन, दोशीज़ाओं और तालिबात पर फ़खरे कसते हैं और उन्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं। छेड़खानी के इन वाक़यात पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने ऐलान किया था कि तालीमी इदारों के अतराफ 100 मीटर के दायरे में जितने भी पान और चाय के स्टॉल्स हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाएगी और उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। आज इस ज़मन में पुलिस इंतजामिया और म्यूनसिपल अमले ने उद्धवराव चौक से हड़को कॉर्नर के दरमियान मुश्तरका कार्रवाई की और तालीमी इदारों के तरफ 100 मीटर के दायरे में मौजूद वहां के पान और चाय की दुकानों पर बुलडोजर्स चला दिए। शहर के उस्मानपुरा इलाके में सुबह सवेरे चाकू घोंपकर एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। मकतूल के रिश्तेदारों ने शराब की वजह से कत्ल होने का इल्ज़ाम आयद किया है। कत्ल की ये वारदात उस्मानपुरा इलाके में अलग सुबह 5 बजे के औकात में पेश आई। मकतूल का नाम 40 साला अशोक शिंगारे बतलाया गया है। इस पूरे वाक़े को CCTV कैमरों ने भी महफूज किया है। शराब को लेकर ये मामला पेश आने का इल्ज़ाम मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने आयद किया है, जबकि उस्मानपुरा पुलिस ने एक शख्स को तहवील में लिया है। पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक कत्ल की वारदात के मेन मुलजिम का नाम निखिल शिंगारे बतलाया गया है, जबकि प्रज्योत शिंगारे और अक्षय गायकवाड़ ये मुलजिमीन मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने कलीदी मुलजिम निखिल को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों मफरूर मुलजिमीन की तलाश जारी होने व दीगर तहकीकात से मुताल्लिक़ मालूमात API सीमा बुड़े ने दी है। सकाळी 5:15 वाजेच्या सुमारास 112 नंबरवर फोन आलेला, तर मग त्यानंतर आमचे PSI बोलले आणि इतर कर्मचारी सदर ठिकाणी दाखल झाले। तर तिथे गेले असताना घटनेचं ठिकाण आहे मुरलीधर नगर उस्मानपुरा येथे गेले सगळेजण। तिथे गेले असता पाहिलं असता एक 46 वर्षाची इसम आहेत अशोक दादाराव शिंगारे, हे रक्ताच्या थारोळ्यात बेशुद्ध अवस्थेत पडलेले दिसले। त्यानंतर मग ॲम्ब्युलन्सला बोलवलं आणि त्यांना घाटी हॉस्पिटल येथे पुढील उपचारासाठी रवाना केलं। मग त्याच्यानंतर जे घटनास्थळ आहे ते संरक्षित करण्यात आलं। त्याच्यानंतर बोडले सरांनी आमचे PI जाधव सरांना फोनद्वारे सगळी माहिती दिली, तसेच ACP रणजित पाटील सरांना माहिती कळवली, तसेच DCP सर नवनीत कावत साहेब यांना देखील माहिती कळवली। त्याच्यानंतर सर्व अधिकारी आणि टीम सदर ठिकाणी गेली। तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे CCTV फुटेज सदर घटनास्थळचे CCTV फुटेज पाहिले आणि जो आरोपी आहे निखिल शिंगाडे याला तांत्रिक मदतीच्याद्वारे अटक करण्यात आली, ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। जर हे प्रकार थांबले नाहीत, आज मर्डर झाले, अजून प्रशासन कशाची वाट बघतंय? दिन दहाडे खून होणार, रात दिवस चालू होणार आहे। महिला आमच्या माता भगिनीवर काय बलात्कार होण्याची वाट प्रशासन बघतंय। माझं आव्हान आहे की धंदे ताबडतोब बंद करा, नसता दारूबंदी संघर्ष समिती येणाऱ्या काळात फार मोठ्या प्रमाणात आंदोलन या विरोधात करा। याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलीस प्रशासन व संबंधित विभागाची राहील असे मी इथं जाहीर करतो। आणि कदाचित जर या दुकानावर, या अवैध दारूच्या दुकानावर जर योग्य ती कारवाई आत्ताच जर पोलीस प्रशासन किंवा शासनाने घेतली नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये अजून काय प्रकार घडतील हे आपण सांगू शकत नाही। म्हणून जितक्या लवकर होईल तितक्या लवकर या अवैध दारूची दुकानं लवकरात लवकर बंद व्हायला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। उद्धव ठाकरे की क़ियादत पर एतमाद दिखाते हुए देवानगरी, मयूरबन कॉलोनी और शंभूनगर के कई नौजवानों ने शिवसेना UBT ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। नाजरीन, असेंबली इंतखाबात की आमद है, मगर इलेक्शन के ऐलानात से कबल रियासत भर में सियासी उथल पुथल जारी है। सियासी कायदीन एक पार्टी को अलविदा करके दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने लगे हैं। रियासत महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल सियासी जमातों की ताकत में इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए कई सियासी कायदीन शिवसेना, उद्धव ग्रुप, NCP, शरद पवार ग्रुप और कांग्रेस का दामन थामने लगे हैं। हमारे शहर में भी यही हाल है। मयूरबन कॉलोनी, शंभूनगर और देवनागरी के कई नौजवानों ने उद्धव ठाकरे की क़ियादत पर एतमाद करते हुए शिवसेना UBT ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिनका औरंगाबाद मगरिब हल्के के
शिवसेना उद्योग ग्रुप के सदर राजीव शिंदे ने मशाल निशानी वाला गमछा पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। इन नौजवानों ने वादा किया है कि मुस्तकबिल में पार्टी के आला कायदीन उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे वो उसे पूरा करेंगे। इस मौके पर देवदत्त डिडोरे, प्रतीक तायडे, अक्षय हिवाड़े, रोहन गायकवाड़, कृष्णा गेंदे, अनुज सरोदय, आर्यन राजपूत और दीगर नौजवान मौजूद थे, जिन्होंने उद्योग ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कायम करदा मिलिंद कॉलेज के अमृत महोत्सवी साल के मौके पर कॉलेज के पहले प्रिंसिपल के तहरीर करदा ड्रामे की नुमाइश की जाएगी। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। आया रहे कि मिलिंद कॉलेज के पहले प्रिंसिपल रहे MB चिटनिस के तहरीर करदा नाटक युग यात्रा को खुद डॉक्टर अंबेडकर ने भी पसंद किया था। कॉलेज की 75 साला तकरीबात के मौके पर 14 अक्टूबर को शाम 6 बजे शहर के तापड़िया नाट्यगृह हाल में कॉलेज के तलबा इस नाटक को पेश करेंगे। इस तरह की मालूमात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर वैशाली प्रधान ने दी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुकम्मल 68 साल बाद अब इस नाटक को कॉलेज के तलबा व असातिज़ा अमली तौर पर पेश करेंगे। इससे पहले यह नाटक 14 अप्रैल 1955 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सालगिरह के मौके पर मिलिंद कॉलेज ही में कॉलेज के तलबा ने पेश किया था। बाद-ए-आज़म 20 नवंबर 1955 को डॉक्टर अम्बेडकर और माई साहब अम्बेडकर की मौजूदगी में कॉलेज में यह नाटक हुआ था और इस नाटक को देखकर बाबा साहब इतने मुतासिर हुए थे कि उनकी हिदायत पर इस नाटक को 14 अक्टूबर 1958 में नागपुर के दीक्षा तकरीबात में 5 लाख लोगों की मौजूदगी में पेश किया गया था। इस नाटक के प्रोग्राम में 14 अक्टूबर को दाखिला मुफ्त रहेगा। तमाम शहरियान से इस्तेफादे की अपील प्रिंसिपल डॉक्टर वैशाली प्रधान ने की है। बाबासाहेब आंबेडकरांना एक खऱ्या अर्थाने अभिवादन करण्यासाठी हे जे माइलस्टोन आहे युगयात्रा महानाट्य हे आम्ही 14 ऑक्टोबरला सायंकाळी 6 वाजता तापडिया रंगमंदिर येथे सादर करत आहोत आणि हे मोफत प्रवेश असणार आहे सर्वांसाठी। हे नाटक सादर करते आहेत मिलिंद कला महाविद्यालयाचे प्राध्यापक व विद्यार्थी। मिलिंद कला महाविद्यालयाच्या वतीने हे एक जो उपक्रम राबवले जात आहे त्यामध्ये हे नाट्य आहे। अनेक वेळेस आपण बघतो की साहित्यिकांच्या तोंडून हे वाक्य येत असतं की मिलिंद हे दलित थिएटरचं किंवा दलित रंगभूमीचे उगमस्थान आहे। त्याचं कारणच युगयात्रा हे नाटक आहे आणि म्हणून मला वाटलं की ह्या एका नाट्याने आपण सादरीकरणाने एक आगळी वेगळी बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करता येईल आणि तसंच नवीन विद्यार्थ्यांना ह्या विषयावरती शोधनिबंध सादर करता येईल, रिसर्च करता येईल, कारण की दलित साहित्यामधलं हे सगळ्यात महत्त्वाचं असं नाट्य आहे आणि म्हणून हा आम्ही प्रयोग करतो आहोत। अपाहिज अफराद को दिए जाने वाले वज़ाइफ की 9 माह की रकम उनके बैंक अकाउंट में फौरी जमा करवाई जाए। इस मुतालबे पर कांग्रेस पार्टी के शहर व जिला दिव्यांग सेल की जानिब से एक मेमोरेंडम दिया गया। मज़कूरा दिव्यांग सेल के जिला सदर मुदस्सिर अंसारी और शहर सदर ज़की मिर्ज़ा बेग की रहनुमाई में एक वफ्द आज म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर पहुंचा और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से मुलाकात करके उन्हें बताया कि बजट का 5% रकम में से अपाहिज अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए जो माहाना वजीफा दिया जाता है उसकी अक़सात गुज़िश्ता कई माह से अदा नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से मज़कूरा अपाहिज अफराद को परेशानी का सामना है। लिहाजा वज़ाइफ के 9 माह के बकाये फौरी अदा किए जाएँ। बसूरत दीगर वो लोग 15 अक्टूबर से म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर जंजीरी हड़ताल शुरू करेंगे। इस वक्त में मुदस्सिर अंसारी, कलीम खान, ज़की मिर्ज़ा बेग, शेख आफरीद, शेख शाहरुख, शेख सईद, मोइज़ काजी, ऐश्वर्या थोरात, शेख फैसल, जुनैद लाला, सुहैल और रियाज अहमद शामिल थे। आज हमने महानगर पालिका के आयुक्त साहब श्रीकांत साहब को ये निवेदन किया कि जो 9 महीने से हैंडीकैप लोगों का पैसा रुके हुआ था 5% निधि उदय निर्वाह भत्ता का, तो हमने उनको ये निवेदन दिया है कि 15 तारीख तक हमारा पैसा क्लियर होना चाहिए 9 महीने की निधि, नहीं तो 16 तारीख के दिन हम एक साकड़ी ऑपोजिशन महानगर पालिका के गेट के सामने करने वाले। तो हमको कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं जल्द से जल्द इसमें कोशिश करता हूँ और हमारी पूरी कांग्रेस हैंडीकैप सेल की टीम ने आज यहाँ पर आके निवेदन दिया कमिश्नर साहब को कि 15 तारीख तक दिवाली से पहले हमारा पूरा पैसा क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हैंडीकैप लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। जिस तरीके से लाडली बहना योजना महीने से पहले हमारी बहनों को आ रहे हैं महाराष्ट्र में, तो उसी प्रकार से महानगर पालिका भी हमको 3-3 महीने 6-6 महीने जो पैसे लेट दे रहा है। तो हमने महानगर पालिका से श्रीकांत साहब से ये मांग किया है कि हमारे जल्द से जल्द ये पैसे अकाउंट में डाले जाए। श्रीकांत साहब ने कहा कि इस पर मैं विचार कर आपको जवाब देता हूँ। हमने ये निवेदन दिया है। एक फल बेचने वाले ने गंदे पानी में बोरी डुबोकर फलों पर ढापने की गंदी हरकत से शहरियान ठेलों गाड़ियों की सब्जियां खरीदने को लेकर तशवीश का इजहार कर रहे हैं।
टीवी सेंटर इलाके में एक फल बेचने वाले ने गाड़ी पर मौजूद फलों को ताज़ा रखने के लिए फलों पर ढापने की बोरी को रास्ते पर जमा हुए गंदे पानी के गड्ढे में भिगोकर फलों पर ढाप दिया। इस फल फरोश की इस कराहत आमेज हरकत से ठेलों गाड़ों पर फल सब्जियां बेचने वालों की छवि खराब हुई है और शहरियान उनसे सब्जियां और फल खरीदने को लेकर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि अक्टूबर हीट के सबब फिलहाल शहरियान गर्मी से परेशान हैं। सूरज की तपिश से बचाने और अपने फलों व सब्जियों को ताज़ा रखने हाथ गाड़ी व खांचे वाले उन पर बोरी गीली करके ढांपते हैं। ताहम एक फल फरोश ने बोरी गीली करने के लिए ये गंदा हरकत की और उसे अपने फलों पर ढांप दिया और इसकी इस हरकत का किसी शहरी ने अपने मोबाइल पर वीडियो भी बना लिया था। तालुका खुलदाबाद के सोबल गांव में खवातीन किसान गठ का इजलास मुनक्किद किया गया। इस मेड़ावे में कम खर्च में ज्यादा मुनाफा बख्श खेती से मुताल्लिक रहनुमाई की गई। ये कैंप पानी फाउंडेशन, उन्स भरारी, न्यूज़ बड़ी राजा और संघर्ष महिला शेतकरी गठ की जानिब से मुनक्किद किया गया। इस कैंप की सदारत पानी फाउंडेशन के रहनुमा और ज़रिया ऑफिसर DL मोहिते ने की। इस कैंप में तालुका भर के 113 खवातीन और मर्द ग्रुप के मेंबरान ने हिस्सा लिया। वाज़ेह हो के सोबल गांव में साल 2023 में उन्स भरारी शेतकरी खवातीन ग्रुप को सत्यमेव जयते फार्मर कप मुकाबलों में दूसरा मकाम हासिल हुआ था। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा बख्श खेती से मुताल्लिक रहनुमाई करते हुए राहुरी यूनिवर्सिटी के साइंसदान अनिल दुर्गुरे, निखिल जोशी, तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर ज्ञानेश्वर तारगे, तरक्की पजीर और कृषि भूषण किसान दीपक चौहान, दत्तू धोत्रे व दीगर माहिरीन ने इंतहाई मुफीद मालूमात और मशवरे दिए, जबकि इस कैंप में बड़ी तादाद में खवातीन और मर्द किसानों ने शिरकत की। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पब्लिक सर्विस राइट एक्ट 2015 पर अमलावरी का मुताल्लिका कमीशन के कमिश्नर डॉक्टर किरण जाधव ने लिया जायजा। सरकारी अफसरान को मज़कूरा कानून पर सख्ती से अमल करते हुए शहरियान को बेहतर खिदमत फराहम करने की दी हिदायत। आम खास से मुत्तसिल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गार्डन में कायम करदा डिजिटल डोम थिएटर में दिखाया गया पहला प्रीमियर शो। जोग्राफियाई माहौल के मुताबिक यहाँ शुरू किए गए हैं जिप लाइन, पंजी इंजेक्टर और स्काई साइकिलिंग जैसे एडवेंचर्स। खवातीन और दोशीज़ाओं के साथ छेड़छाड़ के बढ़ते वाक़यात पर काबू पाने पुलिस इंतजामिया और AMC अमले ने शुरू की मुश्तरका मुहिम। तालीमी इदारों के अतराफ 100 मीटर के दायरे में मौजूद पान और चाय की टपरियों का किया गया सफाया। आज चले उद्धव राव चौक से हड़को कॉर्नर के दरमियान बुलडोजर। और दिन दहाड़े उस्मानपुरा इलाके की नागसेन कॉलोनी में चाकू घोंपकर एक शख्स का कर दिया गया कत्ल। महलूक के रिश्तेदारों ने लगाया शराब के गैर कानूनी कारोबार के सबब वारदात पेश आने का इल्जाम। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।